نہیں آپ کی. نہ ہمارا راستہ ایک ہے اور نہ ہی ہماری منزل. کیونکہ آسمان اور زمین کبھی ایک نہیں ہو سکتے. تو چاہتی ہے نا کہ اس کے ماں باپ گھر پہ آئے ہمارے، ہے نا؟ تو اس کو تڑپا جل بن مچھلی کی طرح. فضا مر سکتی ہے لیکن کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اگر ایسا ہو گیا نا، بیٹا کب آتیں گے آپ؟ کیسا لگا؟ زبردست. اسے کھا کر تو مجھے بچپن کی یاد آ گئی. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں نے بچپن میں کھایا تھا. ابھی بھی تم میرے لیے بچے ہی ہو. میرے نزدیک ہم سب انسان ہیں، سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. اور اسپیشلی نوکروں کو تو ہمیں اچھے سے ٹریٹ کرنا چاہیے نا. کیا وہ آپ کی بائک خراب ہو گئی ہے؟ جی یہ تھوڑی پرانی ہے تو تنگ کرتی رہتی ہے. اچھا کوئی بات نہیں، آپ ایک کام کریں، آپ آفس میں اپنی بائک پارک کر دیں، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتی ہوں. نہیں میں چلا جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں. اور اگر نہیں ہوئی اسٹارٹ پھر؟ یہ ہو جائے گی اسٹارٹ. تنگ کرتی رہتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری، ایزی. میں پریشان نہیں ہو رہی، لیکن مجھے یہ ضرور لگ رہا ہے کہ آپ تکلف کر رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے، دراصل مجھے کہیں اور جانا ہے تو اس لیے. Are you sure؟ اچھا آپ نے پوچھا، اس کا بہت بہت شکریہ. شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے رافع، ہم کولیگس ہیں تو obviously ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. خیر میں چلتی ہوں. گڈ لک. I'll see you tomorrow. بائے. زائشہ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم یہاں اپنے روم میں بیٹھی ہوئی ہو، رات کی ہانڈی نہیں چڑھانی کیا؟ امی ہانڈی چڑھا دی ہے اور آٹا بھی گوندھ دیا ہے. جب بھائی آئیں گے نا تو روٹیاں ڈال دوں گی. کیا بات ہے؟ میری بیٹی کچھ ناراض لگ رہی ہے. جب آپ کو میری ناراضگی کا پتہ ہے نا تو وجہ بھی پتہ ہوگی آپ کو. سفیان کے گھر آنے کی وجہ سے ناراض ہونا تم؟ جی، اور پھر آپ نے اس کو اتنی دیر تک گھر پہ بٹھا لیا، اور صرف بٹھایا نہیں، اور آپ نے اتنے پیار سے اسے حلوہ بھی کھلایا. آپ یہ بھول ہی گئی کہ اس کے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. بھولی نہیں ہوں میں کچھ، سب یاد ہے مجھے. لیکن پتہ نہیں کیوں سفیان کو جب بھی دیکھتی ہوں نا تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ ارسلان جیسا بالکل بھی نہیں ہے. امی اب ابھی تک اس کو نا بچپن والے سفیان کی نظر سے دیکھ رہی ہیں. آپ اس کی اصلیت نہیں جانتی، وہ بالکل اپنے بھائی جیسا ہے. اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو تم یہ بات؟ کیونکہ امی وہ میرا پیچھا کر رہا تھا، اور جب میں نے اسے لفٹ نہیں کروائی نا تو اس نے اس گھر میں گھسنے کے لیے آپ کو یوز کیا. کیا کیا سفیان نے؟ پتا چلے گا جو میرے ساتھ کیا نا اماں نے، اس کا یہی کرنا تھا.
आप ही मुझे बताएं अम्मी कि कोई गैर लड़का किसी लड़की को इस तरह लिफ्ट के लिए ऑफर करता है? पहली बात तो ये कि सुफियान गैर नहीं है, तुम्हारा कजन है वो। कोई भी शरीफ लड़का अगर अपनी कजन को बीच सड़क पर अकेला दिखेगा तो वो छोड़ के तो नहीं चला जाएगा ना। सुफियान ने वही किया जो उसका फर्ज था। अम्मी, रायशा, राफे इतनी जल्दी आ गया? हवा से तो भाई बहुत खुश लग रहे हैं। मुझे हाँ। लग रहा है उनकी मीटिंग बहुत अच्छी हुई होगी। राफे बेटा ये सब क्या है? और बहुत खुश भी लग रहे हैं। अरे मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। मैं आज मेरी बॉस के साथ पहली मीटिंग थी और पहली मीटिंग में उनको मेरी प्रेजेंटेशन इतनी पसंद आई कि उन्होंने मेरा प्रोहिबिशन पीरियड जो 3 महीने के बाद खत्म होना था फौरन खत्म कर दिया और मुझे परमानेंट कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे बेटा। वाह भाई, आपने तो पहली बॉल पे ही छक्का मार दिया, बॉस को पहली मीटिंग में इम्प्रेस कर दिया। ये सब कुछ ना आप दोनों की दुआओं की वजह से हुआ है और इसीलिए मैं आप दोनों के लिए एक छोटी सी ट्रीट लेकर आया हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे, तो फिर ये सब? अरे अम्मी, मेरी तीनों ट्यूशंस की ना फीसेस आ गई, मैंने उसमें से थोड़ा सा खर्च कर दिया तो क्या। और देखें, पूरा ऑफिस जो है ना मुझसे ट्रीट मांग रहा है, उन सबको भी ट्रीट देनी है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल दो ट्रीट, हक है उनका भी। भाई अगर आप पिज्जा ला ही रहे थे तो मुझे पहले बता देते, मैं सालन तो ना बनाती। अरे भाई, अगर मैं बता देता तो फिर ये सरप्राइज कैसे देता? कोई बात नहीं बेटा, तुम सालन फ्रीज कर दो, कल खा लेंगे। जायशा, अब ये पिज्जा जो है ना ठंडा हो जाएगा, जल्दी से प्लेटें निकाल कर लाओ, ठीक है? मैं मुंह हाथ धोकर आ रहा हूँ, निकाल के रखना। हाँ हाँ हाँ, जाओ बेटा पिज्जा निकालो, मैं भी शुक्राने के 2 नफिल पढ़ लेती हूँ। मेरा तो बस चल रहा है, मैं अभी खा लूँ। प्लेट्स तो ले आओ, सब साथ खाएंगे। हाँ निकाल के। यार तेरी मॉम तेरे साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमने हमेशा देखा है इसकी मॉम ने इसके हर बड़े मसले में इसको सपोर्ट किया। हाँ यार, इसकी माँ बहुत प्यार करती हैं इससे, यहाँ तक कि इसकी हर बात मानती हैं। अब ऐसा क्या हो गया? मोहब्बत। मुझे भी लगता था कि मॉम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और डैड मेरे दुश्मन है। अब पता चला है कि मॉम भी सिर्फ तब तक सपोर्ट करती हैं जब तक खुद उनका नुकसान ना हो। अपनी अना और इज्जत की खातिर ना आप किसी की भी कुर्बानी दे सकती हैं। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, फिजा को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? क्लास मतलब ये कि फिजा हमारी क्लास की नहीं है और फिजा की उस लालची माँ ने शर्त रखी है कि जब तक मैं मॉम और डैड को लेकर नहीं आता मेरी शादी नहीं कर पाएगी। फिर तो इसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इनकी मदद नहीं मान रही ना माने। तू एक काम कर, कोर्ट मैरिज कर ले, एक बार शादी हो जाने दे, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। कोर्ट मैरिज? वाह भाई, तालियां बजाओ मेरे भाई के लिए। मैंने तो सोचा ही नहीं यार ये कोर्ट मैरिज के बारे में। कैसे सोच लिया तुमने यार, कमाल है। ऑफ कोर्स सोचा था, पागल इंसान। लेकिन तुम ना मेरे डैड को जानते नहीं हो, उनको पता चलेगा ना अकाउंट फ्रीज और ये लात मार के घर से बाहर फेंकेंगे मुझे। यार अंकल ने पहले भी अकाउंट फ्रीज किए थे ना, तेरी मॉम ने मना लिया था उन्हें, इस दफा भी मना लेंगे। हिम्मत कर, फिजा से शादी कर ले। इस दफा बात बहुत डिफरेंट है यार। इस दफा बात मॉम की अना की है और अपनी अना की खातिर ना अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देंगे। अगर मैं कहूँ, तेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। क्या? देख, दुनिया की हर माँ की कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है। ऑफ कोर्स आंटी की भी होगी, तो तू उनसे कोई ऐसी जज्बाती बात कर जिससे वो जज्बात में आके तेरी बात मान लें। सो सिंपल। तुम लोग ना, मेरा ख्याल है मेरी मॉम को जानते नहीं हो अभी तक। उनकी कोई वीकनेस नहीं है यार, और अगर होगी भी ना किसी को पता नहीं चलने देती। बहुत तेज है मेरी माँ। फिर तो भाई से कुछ नहीं हो सकता।
मजा ही आ गया भाई, आज तो आपने मौसम के हिसाब से ना अच्छी सी ट्रीट करवा दी। भाई देखो, मैं तुम्हारी पसंद का पिज्जा लेकर आया हूँ और फ्लेवर भी तुम्हारा पसंदीदा है। हाँ ये तो है। वैसे अम्मी कहाँ रह गई है? अम्मी कहाँ रह गई है आप? आ हम गई, दोनों ने ना पिज्जा खत्म भी कर दिया है खा के आधा। आ गई कहाँ रह भैया। गई थी? हलवा लेने गई थी तुम्हारे लिए। हलवा? हलवा क्यों? आपको क्या पहले से पता था कि मैं आज परमानेंट होने वाला हूँ तो आपने हलवा ही बना लिया? नहीं बेटा, सुफियान आया था तो बस उसी के लिए हलवा बनाया था। सुफियान? वो क्यों आया था? मैं सौदा ले रही थी, तेज बारिश हो गई, उसने मुझे देख लिया तो बस जिद करने लगा कि मैं आपको घर तक छोड़ूंगा। बहुत मना भी किया मैंने, लेकिन वो तो माना ही नहीं, घर तक छोड़कर गया। नहीं, वो मानना भी नहीं था उसने। मैं जानता हूँ ना उसको। भाई आप तो उसकी चची हैं, आपकी जगह कोई और भी होता ना तो वो उसके साथ भी ऐसे ही करता, उनको घर तक छोड़कर आता। भाई आप किसी के बारे में इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? अभी तक आप लोग उसको जानते भी नहीं है सही तरह से, और आप लोग भूल गए हैं कि वो अरसलान और अरीशा का भाई है, बिल्कुल उन्हीं की तरह का होगा। देखो बेटा, मैं सुफियान को ना अच्छी तरह से जानता हूँ। भाई अम्मी पता है कल क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, रास्ते के अंदर मैंने देखा एक बुजुर्ग रोड क्रॉस करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे रोड क्रॉस नहीं हो रहा था और उनकी कोई मदद भी नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं बाइक साइड पर लगाऊं और जाकर उनकी हेल्प कर दूं। मैं ये करने ही वाला था कि देर में सुफियान वहाँ पहुँच गया। सुफियान ने खुद उतर कर अंकल को रोड क्रॉस करवाया और फिर आकर गाड़ी में बैठ कर गया। जब मैंने ये देखा फिर मुझे समझ में आया कि सुफियान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा हमें लग रहा था, और वो मुझसे भी बड़ी मोहब्बत से मिलता है, पता है, बिल्कुल ऐसे जैसे तायाबू मिलते हैं। बेटा हर इंसान ना अपने अमल और अखलाक से ही पहचाना जाता है, और अच्छा इंसान हमेशा दूसरों के साथ अच्छा अखलाक रखता है और मुश्किल वक्त में मदद भी करता है, काम आता है दूसरों के। अरे भाई जायशा, कहाँ जा रही हो? मेरा पेट भर गया है भाई। ये खा के तो जाओ पिज्जा। अम्मी क्या हुआ ऐसे? पेट भर गया होगा, छुड़िया जितनी तो खुराक है उसकी। अम्मी बस अब आप ना दुआ करें कि जो मैंने सोचा हुआ है ना बस वो एक बार हो जाए। मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को इस घर से शिफ्ट करना है, उसके बाद जायशा की शादी करवानी है और आपको हज भी तो करवाना है। सबके बारे में सोच रखा है तुमने, और खुद तुम्हारे बारे में क्या? शादी कब करोगे? हे अम्मी वो भी हो जाएगी, अभी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे, तुम्हें खूब तरक्की दे। आमीन अम्मी। अल्लाह, ये तो पैसे कम है। मुझे याद पड़ता है कि इसमें मैंने ज्यादा पैसे रखे थे, लेकिन पैसे कहाँ गए? फिजा, फिजा, इधर आ। जी अम्मा। इसमें मैंने पैसे रखे थे, अब मैं गिन रही हूँ तो कम है पैसे। पैसे कहाँ गए? अम्मा मुझे क्या पता, पैसों का हिसाब तो तुम रखती हो। अरे तुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो फरिश्तों को पता है कि पैसे कहाँ गए। कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि पैसे मैंने चुराए? पता नहीं, अब पैसों के तो पैर नहीं है ना कि वो दरवाजा खोल के बाहर निकल जाए। इस घर में या तो तू है या मैं हूँ, और कोई नहीं है। बस अम्मा, बस एक ना यही इल्जाम रह गया था चोरी का जो तुमने आज लगा दिया। लेकिन तुम ये बताओ ना कि मैं पैसों का करूंगी क्या? मुझे तो तुम कहीं जाने नहीं देती हो, खुद जाती हो तो बाहर से ताला लगा देती हो। मैं पैसों का अचार डालूंगी, मुझे बताओ। और अगर तुमको मुझ पे यकीन नहीं है ना तो चलो मेरे कमरे की तलाशी ले लो तुम। पैसे तो कम हो गए हैं,
इस घर में कोई आता जाता नहीं है, किसने निकाले पैसे? हाँ, अरे अम्मा, तुम्हें ना अरसान की वजह से ना खुला खर्च करने की आदत हो गई थी। तुमने कर दी होंगे कहीं खर्च और तुम्हें नहीं याद आ रहे। शायद, लेकिन अब पैसे कम है, बिजली का बिल भरना है। तो तुम अपने उस आमिर से कह दो ना, वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम जितने मांगोगी ना वो तुम्हें दे भी देगा। कहाँ से देगा पैसे? मेरे भाई का बेटा है और मेरा भाई महा कंजूस है, नाक बन के गुल्लक पे बैठा रहता है और आमिर से एक एक पाई का हिसाब लेता है। वो जो राशन लेकर आता है ना, वो भी छुप छुप के लेकर आता है आमिर। हैं? उस दिन तो तुम आमिर के सामने कह रही थी कि सब कुछ उसका है, अब क्या हुआ? वो तो उसको चढ़ाने के लिए कह रही थी मैं, उससे काम भी तो पड़ता है मुझे। अच्छा अम्मा, तुम ना परेशान नहीं हो, अब जितने भी पैसे ना हम उसमें गुजारा कर लेंगे और पक्का वादा मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, सही है? अभी आ जाओ बाहर, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, गरम गरम रोटियां भी बना रही हूँ, आ जाओ, सही है? पैसे तो कम हो गए, अब क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। ये रही आपकी चाय। शुक्रिया बेटा। राफे को चाय दे दी? अब नहीं अम्मी, वो भाई कमरे में ना निफल पड़ रहे थे, वो जब बाहर आते हैं तब उनको चाय देती हूँ। अच्छा है, इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, बल्कि सिर्फ उस खुदा का ही नहीं, उन तमाम लोगों का जो उसके साथ नेकी करते हैं। किसकी बात कर रही हैं आप? सुफियान के बारे में कह रही। कभी कभी ना हम इंसान को गलत जज कर लेते हैं, उसके आसपास के लोग अगर गलत हैं तो हमें लगता है कि वो भी गलत है, पर ऐसा होता नहीं है जायशा। जब एक ही बाग में फूल मुख्तलिफ हो सकते हैं तो एक ही घर के बच्चे अलग क्यों नहीं हो सकते? मुझे लगता है कि तुम्हें सुफियान के बारे में बिलावजह बदगुमानी हो गई है। अम्मी आपको पता भी है, सुफियान ने मुझे दोबारा ऑफर की थी अपनी गाड़ी में ड्रॉप करने की, और आप अब भी मुझे कह रही हैं कि मुझे बदगुमानी हो गई है। अरे बेटा ये भी तो देखो ना, उसने तभी ऑफर की जब तुम मुश्किल में थी और तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का ही तो पूछा था। कौन सा तुम्हें कहीं और ले जाने के लिए बात करती? अम्मी मुझे क्या पता उसकी नीयत के बारे में, मैं उसके साथ गाड़ी में थोड़ी बैठ गई थी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा अम्मी कि आप उसी के बारे में क्यों सोच रही हैं? वो हमारा है ही कौन? सायशा, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ बेटा। मेरे बारे में? मैंने देख लिया था जब राफे सुफियान के बारे में बात कर रहा था, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा गिल्ट था, जैसे तुम सुफियान के मामले में किसी कश्मकश का शिकार हो। बेटा, मैं तुम्हें उसी कश्मकश और गिल्ट से निकालना चाहती हूँ। तो क्या चाहती हैं आप? मैं सुफियान से माफी मांगू अपने रवैये के लिए? अरे नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सुफियान की कोई भी तस्वीर दिमाग में बनाने से पहले तुम अच्छे से उसे जज कर लो। तुम ये ना समझो ना कि वो भी अरसलान जैसा ही हो, और सुफियान को अरसलान जैसा समझकर उससे नफरत करना गुनाह होगा बेटा। सही बात तो नहीं है ना ये? मुझे उसकी पहचान कैसे होगी? मेरा कौन सा उससे कोई वास्ता पड़ता है? जायशा, एक जवान लड़की ना एक मर्द की नीयत को अच्छी तरह पहचान सकती है। एक बात तो सोचो, जब भी सुफियान ने तुम्हें घर ड्रॉप करने की ऑफर की,
क्या कभी तुमने उसकी नजरों में वो मैल देखा जो अरसलान की नजरों में था? और बेटा, किसी की नीयत पहचानने के लिए ये काफी होता है। फिजा, लिया खाना भाई, बहुत भूख लगी है मुझे। आ रही हूँ अम्मा, बस 2 मिनट। ये लो अम्मा, स्टार्ट करो। मैंने गरम गरम रोटियां भी बनाई हैं। मैं रोटी देती हूँ। फिजा, अल्लाह तुझे पूछे, क्या ऑल फॉल खाने बनाती रहती है तू? दोपहर में दाल बनाई थी और अभी पालक आलू। तो और क्या बनाऊं अम्मा? घर में जो होगा वही बनाऊंगी ना। घर में मुर्गी या गोश्त तो है नहीं, सब्जी पड़ी थी मैंने बना ली। चलो खा लो, सबर शुक्र कर। हटाओ इसे, तुझे पता है ना कि सब्जी मेरे हलक से नहीं उतरती है। बुरी बात अम्मा, बचपन में क्या सिखाती थी तुम हमें? खाने को ऐसे नहीं कहते। अब तुम खुद क्यों कह रही हो? चलो खाओ। मैंने ना साथ में सलाद भी बनाई है और रायता भी बनाया, अच्छी लगी। बिल्कुल कोरमा लगेगा, सच बोल रही हूँ। क्या बकवास कर रही है? कोरमा कोरमा का नाम ले रही, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैंने नहीं खाना। सुन, अगर तूने पालक आलू बनाना था तो उसके साथ चावल बना लेती। रोटी क्यों बनाई तूने? तुम्हें क्या लगता है अम्मा, चावल होते तो मैं नहीं बनाती? तुम्हें पता है ना चावल मुझे कितने पसंद है। चलो अब जो है ना ये खा लो, और रोज खाओगी ना तो आदत पड़ जाएगी पहले की तरह। हाय अल्लाह नहीं करे मुझे पहली की तरह आदत पड़े। बकवास बंद कर अपनी। फ्रिज से 2 कबाब तल के ला मेरे लिए। अरे अम्मा, भूल गई क्या? नाश्ते में पराठे के साथ तल के दिए थे मैंने कबाब। इस घर में कुछ है या नहीं? कहत पड़ गया यहाँ पे। अम्मा, कहत तो पढ़ना ही है, क्योंकि जो बादल बारिश बरसा रहा था उसका तो तुमने रास्ता ही बंद कर दिया। अम्मा, याद है जब बचपन में मैं खाने को देख के ऐसे मुंह बनाती थी तो तुम मुझे अपने हाथों से खिलाती थी और कहती थी चल फिजा आंखें बंद कर ले। मैं भी ना यही करती हूँ, अपने वाला बना के खिलाती हूँ, खा लो, पता ही नहीं चलेगा कि सब्जी खा रही हो कि कोरमा। चल आंखें बंद करो प्यारी अम्मी, बंद करो आंखें। आंखें, हाँ हाँ खाओ। पानी दे। पानी। क्या हुआ, इतनी बुरी बनी है? खाओ और खाओ, पेट भर के खाना है। खा लो ना, जिद नहीं करो बच्चों की तरह। अम्मा, तुमको तो अब तुम्हारी कमजोरी से काबू करूंगी। देखती हूँ मैं कब तक बर्दाश्त होता है तुमसे। नहीं बेटा, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, बस तुम दुआ करो। लेकिन मॉम, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने क्या कहना है, कैंसर की आखिरी स्टेज है। जब तक दवाई दे रहे हैं तबीयत संभली हुई है, मगर भाई साहब बहुत परेशान हैं। तुम्हें तो पता है बीवी के गुजरने के बाद भाई साहब ने दोनों बच्चों को माँ बाप दोनों बन के पाला है। अब वो सिर्फ ये सोचते हैं कि उनको कुछ हो गया तो ना उनकी खुशियाँ देख पाएंगे और ना उनके लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन मॉम, तायब वो इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं और तुम्हारे डैड तो उनको समझा समझा के थक चुके हैं, लेकिन बाप है ना, तुम्हें तो पता है कि अपनी बीमारी की वजह से बहुत परेशान है। ये लो तुम्हारे डैड आ गए, इनसे बात करो। ज़ैन जी जी बेटा। अच्छा डैड, मुझे बताएं अब कैसी तबीयत है तायब्बू की? बस बेटा, घर तो आ गए हैं लेकिन डॉक्टर्स कोई खास तसल्ली नहीं दे रहे। वो तुम्हें भी बहुत याद कर रहे थे बेटा। डैड, क्या मैं आ जाऊं उनसे मिलने के लिए? नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं और तुम्हारी मॉम वापस आ जाएं तो फिर तुम उनसे मिलने आ जाना। ओके डैड। अच्छा बेटा, ये बताओ ऑफिस तो ठीक चल रहा है ना? भाई की वजह से मैंने ऑफिस की भी कोई रिपोर्ट नहीं ली। डैड, आप प्लीज फिक्र ना करें, मैं यहाँ पे सबको संभाल रहा हूँ, आप सिर्फ तायब्बू की फिक्र करें। चलो ठीक है बेटा। ओके डैड, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।
क्या आप इस वक्त भी लैपटॉप लेके बैठ गए? जो अभी नया प्रोजेक्ट हमने अभी साइन किया है उसकी सारी डिटेल है इसमें, वो देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात कर, बोलो। वो मैं चाह रही हूँ कि मैं नायला को कल डिनर पे इनवाइट करूँ। ये जरूरी बात है शहरी, बुला लो। तुमने इससे पहले कब मुझसे पूछ के किसी को बुलाया? नहीं हामिद, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं उनको खास तौर पे इनवाइट करना चाहती हूँ, सुफियान को जोहा से मिलवाने के लिए। जोहा के ट्रांस से तुम निकल क्यों नहीं पा रही हो? सुफियान की शादी का मामला है, पहले उससे तो पूछ लो। पहले मैंने भी यही सोचा था कि सुफियान से बात कर लूं, लेकिन मैंने कहा कि दोनों रैंडमली अगर एक दफा मिल लें तो फिर बात करूं। ओके, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, गौर से सुन लो। सुफियान पर मैं इस मामले में कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। सुफियान की शादी उसकी मर्जी से होगी, तुम्हारी नहीं, समझी? डोंट वरी, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जोहा से मिलके सुफियान मुझे प्रेशराइज करेगा उससे जल्दी शादी करने के लिए। ठीक है, ओके, हो गई तुम्हारी बात खत्म। अब मैं काम कर लूं? कर लें। आपको कहाँ इंटरेस्ट होता है अपने बिजनेस के अलावा किसी चीज में? अरसलान कहाँ? करिए। डिनर पर क्यों नहीं आया? वो आप लाइब्रेरी में थे ना, तो वो घर आया और खाना खा के सो गया। ओके, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके, आप काम करें, मैं आती हूँ। नहीं उठा रही ना कॉल? नहीं यार, तेरे सामने कॉल मिला रहा हूँ, नंबर बंद जा रहा है। ये सब कुछ ना उस बुढ़ी औरत ने किया होना है, वरना फिजा घर से बाहर नहीं निकलती। तो अब क्या करें? मुझे क्या पता, मुझे पता होता यहाँ बैठा होता मैं। अजीब, फंस गया हूं मैं दो औरतों के बीच में। एक तरफ मेरी मॉम है और दूसरी तरफ वो लालची बुढ़िया। किसी दिन ना पैसे की खातिर बेच देगी ये अपने भतीजे के हाथ फिजा को। अच्छा परेशान ना हो और कुछ खा ले, तूने दोपहर से कुछ नहीं खाया हो। यार नहीं खाना, तुम लोग खाओ जो खाना तुम लोगों ने। यार मॉम, क्या मतलब, नहीं करनी बात अभी भाई। अरे काट क्यों रहा है? फोन उठा, मॉम तेरे लिए परेशान हो रही होंगी। बात तो कर, शायद वो मान जाए। हेलो अरसलान, तुम कहाँ हो? तुम्हारे डैड पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, मैंने बोला वो घर पे ही है। इससे पहले कि उन्हें पता चल जाए तुम प्लीज घर आ जाओ। अरसलान, अरसलान मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अरसलान, मैंने मॉम मुझे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है आप ये कह रही हैं कि मैं चाहूँ तो रात बाहर गुजार सकता हूँ, बस डैड को पता नहीं चलना चाहिए, बाकी आप सब संभाल लेंगी, राइट? मॉम मुझे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है आप ये कह रही हैं कि मैं चाहूँ तो रात बाहर गुजार सकता हूँ, बस डैड को पता नहीं चलना चाहिए, बाकी आप सब संभाल लेंगी, राइट? ये क्या पागलपन है? ये सब क्या था भाई? क्यों, तुम्हें मेरा यार रुकने से कोई मसला है? अबे यार, कैसी बात कर रहा है तू? ओ भाई तो फिर खाना ऑर्डर करो ना, भूख लगी है बहुत। देखा भाई नवाब को, इतनी देर से हम इसको कह रहे हैं, तब इसने कुछ भी नहीं खाया। माँ की कॉल आती है, बच्चे को भूख लग गई। बातें बंद करो और ऑर्डर करो, बल्कि मैं खुद ऑर्डर करता हूँ। मुझे बता कि पिज्जा खाएगा? अबे मुफ्ता है, कुछ भी खाता है, तू मंगवा।
लगा मेरा मैसेज? तुम्हारी तरह बहुत ही खूबसूरत। आई एम श्योर सबसे पहले तो ना मैंने ही तुम्हें विश किया होगा। 100%। अब हो गया ना तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन? देखो हर चीज तुम्हारी याद रखती हूँ मैं। यार तुम इतने इजहार मोहब्बत में कंजूस क्यों हो? तुमने कभी नहीं बोला कि अरीशा आई लव यू। जब तुमसे मोहब्बत ही नहीं है तो फिर कैसे कहूँ? जैन यार ज्यादा बकवास नहीं करो। अच्छा खैर ये बताओ कि कल तुम पार्टी कहाँ दे रहे हो? कहीं नहीं। क्यों? अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हो? नहीं अरीशा, मैं तुम्हें बताया था ना कि मॉम एंड डैड आउट ऑफ सिटी गए हैं क्योंकि ताई की तबीयत बहुत ख़राब है। तुमकी गैर मौजूदगी में मैं अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर सकता हूँ? तो तुम अकेले क्यों करोगे? मैं हूं ना, मैं करूंगी तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट। वैसे भी मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों अपनी हर खुशी एक ही साथ सेलिब्रेट किया करें। ला घर में पैसे खत्म हो रहे हैं। आमिर देगा नहीं और अरसलान से मैं ले नहीं सकती क्योंकि उसको खुद घर आने से मना किया मैंने। तो पता नहीं घर कैसे चलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाय अल्लाह, अरसलान की तो एक ही कॉल आई हुई। मैं तो समझ रही थी कि वो कॉलें कर करके पागल हो चुका होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद ही फिजा को छोड़ने का सोच रहा है? नहीं, मॉम अरसलान की तरह वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा? वो सो रहा है अपने कमरे में, आएगा तो कर लेगा। तुम तो नाश्ता करो। कल रात के खाने पर भी नहीं आया वो, नाश्ते पर भी नहीं है। मुझे लग रहा है कोई नई फरमाइश है जिसके लिए भूख हड़ताल की जा रही है। हामिद आप तो बिला वजह उससे बदगुमान रहते हैं। कोई बात नहीं, बच्चा है, इत्तेफाक होगा। बाबा एक्चुअली शायद अरसलान मुझसे नाराज है। क्यों? जी वो मैं उसको हर बात पे टोकता रहता हूँ आजकल, तो शायद बुरा मना लिया उसने। एग्जैक्टली यही बात मैं तुम्हारे बाबा को समझाती हूँ, पर उन्हें समझ ही नहीं आती है। हाँ तो इसमें क्या गलत है? तुम बड़े भाई हो, कह सकते हो, उसकी भलाई के लिए कहते होगे। वो तो ठीक है बाबा, यू आर राइट, बट कुछ लोगों का होता है ना कि उनको टोकना पसंद नहीं होता। उनको प्यार से पोलाइटली कोई बात समझाएं तो वो फौरन समझ जाते हैं। शायद अरसलान भी वैसा ही है। Am I right? You're right, ऐसा ही है। चल मैं काम करता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो, सो रहा है, उसे सोने दो, रेस्ट करने दो। उठेगा तो आ जाएगा। ठीक है। नूरी बेटा, आप जाएं अरसलान साहब के कमरे में, उन्हें बुला कर लेकर। तुम कहां से आ रहे हो? तुम तो कमरे में सो रहे थे। नहीं तो मैं तो बाहर था। क्या मतलब? सारी रात घर पर नहीं थे तुम? नहीं, मैं तो बाहर था।
तुम सारी रात बाहर थे, तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं इस बारे में? तुम्हें पता था? झूठ। एक मिनट, जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने कहा कि वो कमरे में सो रहा है। Did you know about it? I didn't. मैं रात को इसके कमरे में गई हूँ, ये सो रहा था। आप मुझे क्यों डैड के सामने झूठा बना रही हैं?